Good morning, children. I hope you all are all fine and fit for today's class. Okay, children. So let's move to today's class. As you all know, we were doing in our previous class a new lesson, lesson number 2 from your English literature book. The name of the lesson was The Story of a Great Story. In my previous class, I had read out the complete lesson in front of you children so that it would have been easier for you to read the lesson sitting at home. I hope that each one of you had read that lesson after seeing the video. Have you all done? Have you all done the reading? Fine. So now in today's class, I will be explaining you the lesson. Okay? So let's take out page number 27. Lesson number 2, the story of a great story. Okay, I'm starting the lesson. This is the story of a man who spent 4 years and 4 months all alone on an island. Now see, whose story is this? This is the story of a man. एक आदमी की कहानी है ये, who spent 4 years and 4 months all alone on an island. This story is of a man who had lived in an island all alone, akele, for how many years? For 4 years and 4 months. Now, children, do you know what is an island? आप बच्चों को पता है island क्या है? Island is a piece of land which is surrounded by water. जैसे आप लोगों ने द्वीप देखी होगी, one and the same thing, island को हम द्वीप कहते हैं. So, it's a piece of land which is surrounded by water. तो ऐसे एक आइलैंड में कौन रह रहा था? एक आदमी रह रहा था. Who had और कितने साल उसने वहां पे गुजारे? 4 years and 4 months. वो भी अकेले. See, now let's move ahead. 200 years ago, a young man lived in Scotland whose name was Alexandra Selkirk. Now see, 200 years ago, 200 साल पहले, a young man lived in Scotland. एक जवान आदमी कहाँ रहता था? Where he used to live? A young man where he used to live? In Scotland. And what was his name? His name was Alexandra Selkirk. Okay? He was a rough man with a bad temper. अब वो कैसा आदमी था? He was a rough man, माने violent किस्म का आदमी था ये, है ना? विद अ बैड टेम्पर, और जल्दी से गुस्सा करने वाला, गुस्सेला. और दूसरा क्या था? और ही वॉज अ वेरी वायलेंट पर्सन. सो ही वॉज ऑफन कॉजिंग ट्रबल अमंग हिज नेबर्स. नाउ उसके इसी नेचर के कारण, अब वायलेंट है, उग्र किस्म का आदमी है, तो क्या होगा? उसका किसी से बनेगा नहीं. ही कांट एडजस्ट विद अदर पीपल. सो the neighbor, he was causing problems, troubles to whom? To this neighbors. So they were very much fed up with him. Okay? Now what happened? For this reason, many people were glad when he ran away from home and went to sea. Now this Alexandra Selkirk, what happened? He had ran away from his home. इसने अपना घर छोड़ के भाग के कहाँ गया है? He went to sea. He ran away from his home and went to a sea. When the people of that place came to know that he has left, he has run away from his home and went to sea, they were very, very much happy. They were very glad. We hope that he gets what he deserves, they said. अब वो क्या कह रहे थे? He went away, that's okay. But we hope, वो आशा करते हैं कि at that place he gets what he deserves. माने उसके स्वभाव के कारण क्या होता था? अक्सर लोगों के साथ उसका अनबन होता था, वो कभी उनके साथ सेटल नहीं हो पाता था. Always there used to be some clash with others because of his violent nature. So these these neighbors, what they were thinking, okay, he ran away from his home and went to sea, but at that place also he should deserve what he gets. Alexander was big and strong, and soon became a fine sailor. Now see, Alexandra, he was big and strong, and soon became a fine sailor.
whether he was violent and bad temper, but what sort of person he was big and strong. वो आत्मविश्वास वाला था, strong person था वो, and soon because of this thing, because of his strongness, what happened, he became a fine sailor. वो क्या बन गया, वो एक fine sailor बन गया. अब sailor क्या होता है, a person who sails a boat. आप लोग ने देखा होगा कि जो बोट सेल करते हैं ना, उनको हम कहते हैं सेलर. सो अलेक्जेंडर क्या हुआ, वहां पे जाके अपने घर को छोड़ के वो सी में जाके वो क्या बन गया, एक ग्रेट फाइन सेलर बन गया. बट ही वाज स्टिल अ वेरी स्टबर्न मैन. देखो, भले वो बन गया सेलर, बट फिर भी उसका जो जिद्दीपन है वो अभी भी उसने छोड़ा नहीं था. He got into trouble with other sailors due to his temper. अब यहाँ पर भी उसके यही स्वभाव के कारण, उसके stubbornness के, उसकी जिद के कारण, उसके violent nature के कारण क्या हुआ, अच्छा फाइन सेलर बनने के बावजूद भी वो क्या हुआ, अदर सेलर के साथ वो उसकी बनती नहीं थी. वहां भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था. Once his ship was sailing in the Great Pacific Ocean. It was 400 miles from the coast of South America. Selkirk had become even more unpleasant. आप देखो क्या हुआ, एक बार उसकी शिप जो है कहाँ पे सेल कर रही थी, ग्रेट पैसिफिक ओशन में. ठीक है, पैसिफिक समुद्र में वो सेल कर रही थी. It was 400 miles from the coast of South America. अब साउथ अमेरिका के तट से वो कितने दूर था, 400 माइल्स दूर था वो. सेल्क्रिक had become even more unpleasant. अब ये सेल्क्रिक को क्या हो गया, वो नापसंद कर रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसको अनप्लीज्ड हो रहा था वहां पे. ठीक है, बैठे बैठे he started quarreling with other sailors including the captain of the ship. अब देखो उसको, क्योंकि वो पसंद नहीं कर रहा था वैन, जब वो शिप जब पैसिफिक ओशन में सेल कर रही थी, जो कि समुद्री तट से 400 माइल्स दूर था, तो क्या हो गया, इसको वो सब पसंद नहीं आ रहा था, ये चिड़चिड़ा हो रहा था. अब क्या हुआ, और उसने क्या करना शुरू किया चिड़चिड़ापन में, उसने दूसरे सेलरों के साथ लड़ना शुरू कर दिया, इंक्लूडिंग द कैप्टन ऑफ द शिप. अब सेलर्स की तो छोड़ो, उसने साथ में किससे लड़ना शुरू कर दिया, उसके शिप के कैप्टन से भी उसकी बहस हो गई. I would rather live alone on a deserted island than be a sailor on this ship, he said. अब वो क्या कह रहा है, इस शिप में सेलर बन के जाने से मैं ज्यादा पसंद करूंगा कि एक डेजर्टेड आइलैंड में जाके मैं रहूं, मैंने अकेले. वो डेजर्टेड लैंड में रहना पसंद करेगा, ना कि इस शिप में इनके साथ वो सेल करना पसंद करेगा. अब डेजर्टेड लैंड क्या होते हैं, डू यू नो व्हाट इज एन डेजर्टेड लैंड? एम्प्टी, जहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते, कोई भी नहीं है. तो ऐसे आइलैंड में, डेजर्ट ऐसे आइलैंड में वो क्या कह रहा है, मैं ऐसी आइलैंड में अकेला रहना पसंद करूंगा जहाँ कोई नहीं है, पर तभी मैं आप लोगों के साथ इस शिप में जाना पसंद नहीं करूंगा. Very well, answered the captain. We shall put you ashore on the first island that we see. तो कैप्टन बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि इसके नेचर के साथ तो वो सेटलमेंट तो कर नहीं पा रहे थे, वो लोग इसको लेके चल नहीं पा रहे थे इसके ये उग्र नेचर के कारण. तो क्या हुआ, कैप्टन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया जब उसने खुद अपने से कहा कि मुझे किसी डेजर्टेड आइलैंड में छोड़ दो, मैं वहां चला जाऊंगा, पर मैं आप लोगों के साथ सेल नहीं करूंगा. तो कैप्टन ने कहा, खुशी के मारे कैप्टन ने क्या बोला, अच्छी बात है, जैसे ही पास में कोई भी आइलैंड मुझे दिखेगा मैं उसके तट पे तुम्हें छोड़ दूंगा. ठीक है, डू सो सेड सेल्क्रिक, यू कैन नॉट प्लीज बी बेटर. अब ये सुनते से सेल्क्रिक क्या बोला, बहुत अच्छा, डू सो, ऐसा करो, जल्दी करो, क्योंकि इससे अच्छी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता, और इससे तृप्त मैं किसी चीज में हो भी नहीं पाऊंगा. ठीक है, इससे बड़ी सेटिस्फैक्शन मुझे और कुछ मिलना ही नहीं है. The very next day they saw a little green island. आप देखो, अब उसके अगले ही दिन उन्होंने क्या देखा, a little green island. अब ऐसे ग्रीन आइलैंड देखे जहाँ पे भी पेड़ होंगे, है ना, ऐसे वाले आइलैंड उन्होंने देखे. There were groves of trees near the shore and high hills beyond them. अब क्या हुआ, उसने ऐसे देखे कि जहाँ ग्रीन आइलैंड देखे जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े जो
अच्छे घने घने पेड़ लगे हुए थे, ठीक है। फॉरेस्टेड एरिया, आप ये कह सकते हो कि जहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्टेड एरिया दिख रहा था वो दूर से उनको। तो वहाँ पे क्या हुआ था, ग्रोव्स ऑफ ट्रीज, मैंने पास पास में बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे शोर के पास में, तट के पास, एंड हाई हिल्स बियॉन्ड देम, और इतने बड़े बड़े पहाड़ जो कि उनकी आंखें देखी उसके पार तक भी बड़े बड़े पहाड़ थे। What is the name of this island? Asked Selkirk. अब जैसे ही उसने वो देखा, उसने वो पूछा कि ये कौन सी आइलैंड है, इसका नाम मुझे बताओ। जॉन फर्नांडिस सेड द कैप्टन, कैप्टन ने क्या बताया, वो लिटिल ग्रीन आइलैंड कौन सी आइलैंड थी, जुआन फर्नांडिस उस आइलैंड का नाम था। सेट मी ऑन द शोर एंड लीव मी देयर। अब सेल्फिड बहुत खुश हो गया, उसने क्या बोला कि चलो मुझे यहीं छोड़ दो, वहां पे जाके मुझे छोड़ दो, मैं अकेला चला जाऊंगा, बस उसके तट तक मुझे ले चलो। गिव मी अ न्यू गिव मी अ फ्यू कॉमन टूल्स एंड सम फूड, आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, सेड द सेलर। आपसे अलेक्जेंडर सेल्फ्रिक क्या कह रहा है कि मुझे इस तट पे छोड़ दो, जल्दी से जल्दी मुझे उस ग्रीन लिटिल आइलैंड के पास, मुझे उसके शोर पे छोड़ दो, उसके तट पे छोड़ दो, और कुछ औजार दे दो, कॉमन औजार जैसे हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, ऐसी कोई भी चीजें, ऐसी चीजें मुझे दे दीजिए, और साथ में कुछ खाना दे दो मुझे, और मैं यहाँ पे मस्त रहूंगा, ठीक है, और मुझे भरपूर आनंद मिलेगा, मैं बहुत सेटिस्फाई हो जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इट शैल बी डन आज द कैप्टन, तो कैप्टन ने तुरंत क्या बोला, ठीक है, ये बात तुम्हारी हम मान लेते हैं, हम तुम्हें कॉमन जो औजार है वो भी हम दे देंगे, साथ ही साथ आपको खाना दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपको छोड़ देंगे। कैप्टन राजी हो गया इस बात को लेके, ठीक है। नाउ द रिमेनिंग लेसन आई विल बी कंटिन्यूइंग इन माय next class. Meantime, you children sit at home and read the lesson till how much I have explained you today. And you children try to understand what I said. Are you able to understand the portion where I am leaving today till there? Are you able to understand or not? Okay, if you are not able to understand, watch the video again. Okay, so that it will be easier for you. And in my next class, we will continue with the lesson. I'll explain you the remaining lesson. Okay. So, till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.